Pepsi, Coca-Cola, KFC, Let's KFC. पूरी दुनिया के मुसलमान Genocide. 50,000 people have died. इन बड़े बड़े ब्रांड्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। 66,000 फलस्तीनियों को मार चुका है। मतलब फलस्तीन के हर एक शख्स के शहीद होने से इजराइल को $5 मिलियन का नुकसान हुआ है। लोगों को चाहिए इजराइल का बॉयकॉट करें, अमेरिकन कंपनीज का नहीं। पेप्सी, कोका कोला, KFC ये सारी तो अमेरिकन कंपनीज हैं। लेकिन जापान के इस हमले और जुल्म के बाद चाइना की अवाम ने एक फैसला किया। इस बॉयकॉट की मिसाल ऐसी ही है कि अगर कोई शख्स मुझे मारने के लिए मेरे सर पर क्लाशिनकोव रखे और मैं उससे लड़ने के लिए सिर्फ एक पत्थर उठाऊं, ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੈਲਸਟੀਨ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਲਸਟੀਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਆਟੋਮਨ ਸੀ, ਤੁਰਕਿਸ਼ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਊਜ਼, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 1948 ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਡੇ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਮ ਕਿਪੂਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬਨਨ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਬੁੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਬਨਾਨ, ਹਮਾਸ, ਯੈਮਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ 2000 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਾ ਕੋਹਿਸਤਾਨੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਸਸ ਆਲ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਊਇਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਆਜੋ ਦੇਖੀਏ। पेप्सी, Coca-Cola, KFC, Let's KFC. पूरी दुनिया के मुसलमान Genocide. 50,000 people have died. इन बड़े बड़े ब्रांड्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर मुसलमानों के इस बॉयकॉट का फायदा क्या है? How effective are these boycotts? किस तरह इन कंपनीज को बॉयकॉट करने से फलस्तीन में किसी बच्चे की जान बचाई जा सकती है? देखते हैं कितना का वैलिड पॉइंट है ना। और इस बॉयकॉट से इजराइल को क्या फर्क पड़ता है? Give us the tools faster and we'll finish the job faster. असल में मुसलमानों की इस बॉयकॉट की स्टोरी यहाँ से नहीं, बल्कि आज से बहुत साल पहले दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला के साथ शुरू होती है, जिसने अपने मुल्क साउथ अफ्रीका को
गोरों की गुलामी से निकालकर रेसिज्म के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन perpetrators of racism. और उसे एक ऐसा स्टेट बनाया जहां व्हाइट, ब्लैक सबके लिए एक ही कानून हो, The human rights of all our citizens. जिसके बाद नेल्सन मंडेला पूरी दुनिया में फेमस हुए। और अमेरिका का ये ख्याल था कि वो नेल्सन मंडेला को भी बिल्कुल बाकी लीडर्स की तरह अपना एक पपेट लीडर बनाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला कोई आम लीडर नहीं था। वो इससे पहले 27 साल जेल में रहे, बहुत ही स्ट्रगल से यहाँ तक पहुंचा था। 27 और उसे साल। कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जब नेल्सन मंडेला अपनी ताकत की पीक पर था, उनसे एक इंटरव्यू लिया गया Ladies and gentlemen, Nelson Mandela. जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो अमेरिका का दुश्मन हो वो हमारा भी दुश्मन हो। Should be our enemies. और साथ ही अमेरिका के पॉलिसीज के खिलाफ जाकर कहा कि हम चाहते हैं फलस्तीन को उसका हक दिया जाए, Territories should be returned to the Arab people. क्योंकि फलस्तीनियों की जंग भी बिल्कुल हमारी तरह एक आजादी की जंग है। They are fighting for the right of self-determination. मतलब फलस्तीन के इशू पर नेल्सन मंडेला सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ अकेले खड़े हुए थे। लेकिन इस इंटरव्यू के साथ वो रुके नहीं, बल्कि इसके कुछ ही साल बाद साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की वजह से दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में बहुत सारी चीजें थी, जिसमें दुनिया का हर मुल्क इनवाइटेड था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि दुनिया के हर जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जाए, इंक्लूडिंग इजराइल का फलस्तीन पर जुल्म। ये देखकर पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज ने इस कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की और इसका बॉयकॉट किया, इजराइल और अमेरिका। लेकिन अजीब बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस शुरू तो हुई, लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस सितंबर 2001 में हुई थी और इसके शुरू होने के सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका पर हमला किया गया। नाउ ये कॉन्फ्रेंस तो इजराइल के मसले तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन इसमें एक शख्स ऐसा था जो नेल्सन मंडेला और उसकी स्ट्रगल से बहुत इंस्पायर हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना दुनिया के सारे मुसलमान भी इजराइल के जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू करें। उमर बरगोती और इजराइल का बायकॉट करना चाहिए। बायकॉट, असल में ये लफ्ज बायकॉट नहीं बल्कि बॉयकॉट है, जो आज से 150 साल पहले इंग्लैंड के एक जालिम बिजनेसमैन चार्ल्स बॉयकॉट का नाम था, जो वहां अपने वर्कर्स पर बहुत जुल्म किया करता था और उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया करता था। आखिर एक दिन इन सारे वर्कर्स ने चार्ल्स बॉयकॉट के इस जुल्म से तंग आकर उसके खिलाफ एक बगावत करने की कोशिश की। लेकिन चार्ल्स बॉयकॉट इतना पावरफुल आदमी था कि इन वर्कर्स का उससे लड़ना इम्पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इन सारे वर्कर्स ने मिलकर बॉयकॉट के खिलाफ एक प्लान बनाया कि आज के बाद चार्ल्स बॉयकॉट के लिए ना हम कोई काम करेंगे, ना इसके कपड़े धोएंगे, ना इसके लिए खाना बनाएंगे और ना इससे कोई भी चीज खरीदेंगे। इन वर्कर्स का ये प्लान इतना जबरदस्त था कि इसके कुछ ही अरसे बाद बॉयकॉट इनसे जान छुड़ाकर हमेशा के लिए यहाँ से भाग गया। और ये एक इतना जबरदस्त पीसफुल प्रोटेस्ट था कि दुनिया में हर तरफ लोग इसे यूज करने लगे। यहाँ तक कि इस प्रोटेस्ट का नाम ही चार्ल्स बॉयकॉट की वजह से बॉयकॉट पड़ा। बॉयकॉट लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैल रहा था, लेकिन इस स्ट्रेटेजी का बेस्ट यूज एक बहुत बड़े लीडर महात्मा गांधी ने किया, जिसने इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर की गुलामी से निकालने के लिए बहुत सारे काम किए, जिनमें से एक था ब्रिटिश एम्पायर का बॉयकॉट। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर के टेक्सटाइल, स्कूल्स, टैक्सेस और इवन अदालतों को भी बॉयकॉट करने का हुक्म दिया। गांधी के इसी स्ट्रेटेजी को देखकर दुनिया के और भी बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज करने लगे। मतलब जब इंडिया में ये सब कुछ हो रहा था, अचानक वहां यूरोप में दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर ने यूरोप के यहूदियों को मारना शुरू किया। और यहूदियों के पास बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो हिटलर जैसे खतरनाक इंसान के साथ
गन्स और टैंकों से मुकाबला करें। तो उस वक्त के यहूदियों ने मजबूरन इंडिया के महात्मा गांधी से सीखा और पूरी दुनिया में यहूदियों को जर्मनी का बॉयकॉट करने को कहा, जिसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने मिलकर जर्मनी से हर चीज खरीदना बंद कर दिया। यहूदी प्रोफेसर्स जर्मन यूनिवर्सिटीज से रिजाइन करने लगे। इवन जर्मनी के यहूदी अपनी जर्मन सिटीजनशिप भी छोड़ने लगे। इन्हीं यहूदियों में उस वक्त के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, Unless we can define time. जिन्होंने इसी बॉयकॉट की वजह से अपनी जर्मन सिटीजनशिप और यूनिवर्सिटी छोड़ दी। नाउ इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर उमर बरगोती ने आज से एग्जैक्ट 20 साल पहले 2005 में इजराइल को बॉयकॉट करने की एक ग्लोबल कैंपेन शुरू की, BDS, और पूरी दुनिया के लोगों से अपील की कि वो इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ उनके सारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दें। To boycott their company, to force their company to abandon illegal projects in Israel. लेकिन ये बॉयकॉट सिर्फ इजराइल के कंपनीज के खिलाफ था। अमेरिकन कंपनीज जैसे कोका कोला, पेप्सी, KFC इनके खिलाफ नहीं था। BDS के बनने के बाद अगर सच में देखा जाए, इसका दुनिया पर इतना बड़ा कोई असर था नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इसे बिल्कुल भूल चुके थे। लेकिन अचानक आज से 2 साल पहले एक बार फिर इजराइल और फलस्तीन की जंग शुरू हुई। इजराइल की फौज गजा में एंटर हुई और हजारों मासूम फलस्तीनियों को शहीद करने लगी। इस जंग में इजराइल अकेला नहीं, बल्कि उसके पास सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट थी, 2,000 US troops are now on a hike. जिसने इजराइल को वेपन्स के साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। और इस बात का तो ऑफ कोर्स सबको पता था कि एग्जैक्टली ऐसा ही होना है, क्योंकि Because everybody knows the United States is a friend of Israel. लेकिन इजराइल के हमले के सिर्फ 6 दिन बाद एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। अचानक एक दिन इंस्टाग्राम पर अमेरिका की एक कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने इजराइल में ये ऐलान किया कि इजराइल के फौज के हजारों सोल्जर्स को हम फ्री में खाना देंगे और हर फौजी को इजराइल के मैकडॉनल्ड्स में बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे। इसी तरह अमेरिका की कुछ बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया, जैसे कि बर्गर। मैन दिस इज वेरी रॉन्ग ब्रो। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਇੰਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜਤੇ, ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ, ਆਪਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਿਰਦਈ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਚਲ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਲੋਕ, ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਕਿਓਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਹਿਊਜ ਮੈਸੇਕਿਓਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਫਿਰ किंग्स, स्टारबक्स। अब जब दुनिया के मुसलमानों और सोशल एक्टिविस्ट ने यह देखा कि इजराइल की फौज मैकडॉनल्ड्स के फ्री बर्गर खाकर मासूम फलस्तीनी बच्चों की जान लेती है, और ऐसा करने के लिए उसे पूरी दुनिया का सपोर्ट हासिल है। I love Israel, I love Israel. और इवन मुसलमान लीडर्स भी इजराइल के इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अब जब और कोई रास्ता नहीं था, तो लोगों ने खुद इजराइल पर प्रेशर डालने के लिए वही बॉयकॉट BDS की कैंपेन दोबारा शुरू की। In campaigns such as BDS. इस बॉयकॉट में सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि क्रिश्चियंस, एथियस्ट और इवन बहुत सारे यहूदी भी शामिल हैं। Jewish support for BDS. और इजराइल के खिलाफ ये बॉयकॉट आज दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी बॉयकॉट कैंपेन बन चुकी है। लेकिन ये कैंपेन थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि आज दुनिया के मुसलमान 2 बड़े ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप वो जो कहता है इजराइल के खिलाफ इस बॉयकॉट का कोई फायदा नहीं है, और दूसरा वो ग्रुप जो कहता है हमें हर हाल में इजराइल के खिलाफ बॉयकॉट करना चाहिए। जो लोग इस बॉयकॉट के खिलाफ है, वो कहते हैं इस बॉयकॉट का अब तक क्या फायदा हुआ है। मतलब पिछले 2 साल से
बॉयकॉट की ये कैंपेन चल रही है और इजराइल को इससे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके जवाब में बॉयकॉट वाले कहते हैं कि नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इजराइल ने पिछले 2 सालों में इस बॉयकॉट की कैंपेन को रोकने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुसलमानों का ये बॉयकॉट खत्म हो गया तो इजराइल को बिलियंस का फायदा होगा। क्योंकि इस जंग के शुरू होने के बाद अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इजराइल को छोड़कर जा चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम है इंटेल। इंटेल ने इजराइल के साथ $25 बिलियन की डील इस जंग की वजह से खत्म कर दी है, और ये डील इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी डील थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इजराइल पर इतना प्रेशर है कि अब तक इजराइल में 46,000 कंपनीज बंद हो चुकी है। इस जंग से इजराइल के अगर पूरे नुकसान को देखा जाए तो वो कुछ $300 ਬਿਲੀਅਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਵਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰਸ ਪਾਵਰ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਬਾਹੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਬਾਹੀ। डॉलर्स बनते हैं, और इजराइल अब तक इस जंग में 66,000 फलस्तीनियों को मार चुका है। मतलब फलस्तीन के हर एक शख्स के शहीद होने से इजराइल को $5 मिलियन का नुकसान हुआ है। वेट, अगर इजराइल फलस्तीन पर इतना ही जुल्म कर रहा है तो लोगों को चाहिए इजराइल का बॉयकॉट करें, अमेरिकन कंपनीज का नहीं। पेप्सी, कोका कोला, KFC, ये सारी तो अमेरिकन कंपनीज हैं। इनका इजराइल के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। अमेरिका के इन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट के बगैर इजराइल की दुनिया में कोई औकात नहीं है। मतलब हर साल अमेरिका के इन कंपनीज की तरफ से इजराइल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की पूरी गवर्नमेंट, फौज और इकोनॉमी चलती है। लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका की ये कंपनीज सिर्फ इजराइल में नहीं, बल्कि इजराइल से बाहर 57 इस्लामिक कंट्रीज में भी फैली हुई हैं, और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान हर दिन इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अब अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मिलकर अमेरिका के इन कंपनीज को वार्निंग दी कि या तो तुम्हारा बिजनेस दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों के साथ होगा, और या सिर्फ 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल के साथ, तो जब ये कंपनीज एक तरफ 200 करोड़ और दूसरी तरफ सिर्फ 1 करोड़ लोगों को देखेंगे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इजराइल से निकाल देंगे, जो शुरू हो चुका है। Several global companies have pulled out their operations from Israel. Starbucks has fired its CEO. McDonald's global sales are declining. Burger King is changing its name. KFC is closing branches. ये सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका की इन कंपनीज ने पेप्सी, कोका कोला, KFC, मैकडॉनल्ड्स हमारे मुल्कों में लाखों लोगों को जॉब्स दी हैं, और अगर इन कंपनीज का बॉयकॉट किया गया तो इन लाखों गरीब लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। मतलब इस बॉयकॉट से सबसे बड़ा नुकसान हमारे लोगों का ही होगा। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में एक वक्त ऐसा आया था कि जब जापान की एम्पायर ने चाइना पर हमला कर दिया था, और चाइना के लोगों पर बहुत जुल्म करके बहुत सारा इलाका फतह कर लिया था। ये एक ऐसा टाइम था कि जब चाइना एक बहुत ही कमजोर और गरीब मुल्क था। मतलब चाइना के अंदर दुनिया को बेचने के लिए कोई भी चीज नहीं बनती थी, और चाइना अपनी हर चीज बाहर की दुनिया से इंपोर्ट करता था। लेकिन जापान के इस हमले और जुल्म के बाद चाइना की आवाम ने एक फैसला किया कि आज के बाद हम अपनी जरूरत की हर चीज चाइना के अंदर देखो तुसी हुन चाइना कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई, खुद बनाएंगे। चाइना के इसी बॉयकॉट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद हर चीज बनाने लगे, जिसे आगे जाकर एक बहुत ही फेमस नाम मिला, मेड इन चाइना, जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि आज अगर अमेरिका की कंपनीज का बॉयकॉट किया गया, उससे लाखों लोगों की जॉब्स तो जाएंगी, लेकिन क्या पता बिल्कुल चाइना की तरह हम भी खुद इन कंपनीज को छोड़कर अपनी खुद की कंपनीज बनाने लगे, जो आहिस्ता आहिस्ता इस बॉयकॉट की वजह से हो भी रहा है। मतलब इजराइल के इस बॉयकॉट के बाद पाकिस्तान में कोका कोला के मुकाबले में कोला नेक्स्ट एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पिछले 2 सालों से मलेशिया में लोग अमेरिका की कंपनी स्टारबक्स को छोड़कर
अपनी लोकल कंपनी ZUS कॉफी की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से ZUS कॉफी ने मलेशिया में अब तक सिर्फ 2 सालों में 360 ब्रांचेस खोली है। इसी तरह इजिप्ट में लोग KFC को छोड़कर बजूका फ्राइड चिकन खरीदने लगे, जो अब इजिप्ट से बाहर एक ग्लोबल ब्रांड बनने लगा है। ऊपर तुर्की में KFC की सारी ब्रांचेस 500 ब्रांचेस बिल्कुल बंद हो चुकी हैं और उसकी जगह लोग एक लोकल ब्रांड CTR चिकन को प्रमोट कर रहे हैं। और इंडोनेशिया में भी KFC की जगह CFC ने ले ली है। मतलब अमेरिका के इन कंपनीज के बॉयकॉट से जो लाखों जॉब्स खत्म हो रही हैं, उधर एट द सेम टाइम इन लोकल कंपनीज के ताकतवर होने की वजह से हजारों नई जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं, जिसका हमारे मुल्कों को ज्यादा फायदा है। चलो ठीक है, मान लिया कि इस बॉयकॉट का बहुत फायदा है, लेकिन फिर तुम लोग सिर्फ पेप्सी, KFC, मैकडॉनल्ड्स, मतलब सिर्फ बर्गर और चिप्स का क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? अमेरिका की हर कंपनी का बॉयकॉट करो। आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और इवन यूट्यूब का, जहां लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इसका भी बॉयकॉट करो। ये बात जो लोग करते हैं, इससे क्लियरली पता चलता है कि इन्हें बॉयकॉट्स की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि दुनिया में कभी भी ऐसा बॉयकॉट नहीं हुआ जिसमें लोग दुश्मन के हर चीज का बॉयकॉट करें। मतलब महात्मा वो दुखती रग ते हाथ लाना ना। गांधी की एग्जाम्पल लेते हैं। जब उन्होंने द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बॉयकॉट किया, तो गांधी ने उनके कपड़ों, नमक, अदालतों और स्कूल्स का बॉयकॉट किया। लेकिन गांधी ने कभी भी ब्रिटिश एम्पायर के रेलवेज, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ। लेटर्स भेजने की सर्विस ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस का बॉयकॉट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश एम्पायर की इन चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके हम उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह जब आइंस्टाइन ने हिटलर का बॉयकॉट किया, उसने अपनी जर्मन सिटीजनशिप, यूनिवर्सिटी और लेक्चर्स सब छोड़ दिए, लेकिन कभी भी जर्मनी की टेक्नोलॉजी का बॉयकॉट नहीं किया और आखिर तक जर्मनी के साइंटिस्ट के साथ कनेक्टेड रहे। Which means बॉयकॉट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जाहिलों की तरह हर चीज का बॉयकॉट किया जाए, बल्कि सिर्फ उन चीजों का बॉयकॉट किया जाए जिससे हमें फायदा और दुश्मन को नुकसान हो। इन शॉर्ट, मुझे इन सारे बातों के बाद यही लग रहा है कि इस बॉयकॉट की मिसाल ऐसी ही है कि अगर कोई शख्स मुझे मारने के लिए मेरे सर पर क्लाशिनकोव रखे और मैं उससे लड़ने के लिए सिर्फ एक पत्थर उठाऊं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई शख्स मुझे मारने के लिए मेरे सर पर क्लाशिनकोव रखे और मेरे पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो मैं उससे लड़ने के लिए एक पत्थर भी ना उठाऊं। Subscribe. ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਅੱਗ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੌਂਕਾ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਈਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ, ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬॉयਕਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬॉयਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਈ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਬਲ ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਹਾਣ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਵੋਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਿਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਬਾਹੀ, ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, GDP ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਐਫਰਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਏ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਜੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਜੈਂਡ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਟਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 200 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।